Good evening to brothers and sisters and distinguished delegates, and good evening to Madam Dr. Deepa Bari, Vice President, International Vice President, JP Sabha Society, Araya Chennai, and our distinguished delegates, and our special lecture provider, Dr. Sandeep Pandey. Good evening once again. I just take a few minutes, couple of minutes to introduce you. I give it a privilege to give introduction for Dr. Sandeep Pandey. He is a social worker and activist, and we can call him as a campaigner, crusader, a challenger, and ambassador for rights deprived masses in various aspects of Indian politics. Sri Sandeep Pandey was born on 22nd July 1965. He is now 57 years old, and he is a visiting professor at IIM, Indian Institute of Management, Ahmedabad, and his alma mater is IIT, Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi. Masters in from Syracuse University, USA, and a doctorate from University of California, Berkeley, United States. And he has founded Asha for Education, and he is associated with the Socialist Party in the political level. And he is the recipient of Raman Magsaysay Award during the year 2002. It's equivalent to Asian Nobel Prize, Nobel Award, and he was the first recipient of this award below 40 years category. He has wrote a book in April 2019 on Kashi Vishwavidyalaya, मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्यों निकाला गया? That issue was in favor of him through judicial process. So Sandeep, I met him sometime in 2006 in Kakinada, Andhra Pradesh. He has visited 3 or 4 times Kakinada for several activities, and he is married to Srimati Arundhati Duru, and he has 2 children, Chaitanya and Anandi. And now he is going to speak on a special lecture, Fundamental Duties in Indian Constitution, and the floor is left to him. We have become related. You will speak for 40 minutes. So the time is 5:23, 5:24, 40 minutes, and the interaction will be there. For any questions or like that, we will answer. Thank you. Thank you, Mr. Rao, and the organizers of this conference. Even though I saw that Professor Jain was speaking in Hindi in the morning, I want to ask if there is anybody in the audience who cannot understand any Hindi at all. Anybody from South India or, yeah, so there are some people.
एंड आई थिंक इंग्लिश मोस्ट पीपल विल बी एबल टू फॉलो। मतलब जो यहाँ लोग हैं, अंग्रेज़ी तो मुझे लगता है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं, आप नहीं, अच्छा तो हाँ नहीं देखिए सुनिए, आप हिंदी इसको ये जो आप कह रहे हैं ना, अरे भाई आप हमारी बात सुनिए, अब पहले इसी पे पहले बोलिए। अगर यहाँ पे सब लोग हिंदी समझने वाले होते तो हिंदी में ही बोलता। अरे भाई यहाँ 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदी नहीं समझ सकते। नहीं जरा मुझे इनके साथ संवाद करने दीजिए। गोहिल साहब, आप इनको चुप मत कराइए। ये जो आपका रवैया है ना, हिंदी थोपने वाला, अभी आपको मालूम है बहुत सालों के बाद तमिलनाडु का एक राजनेता है ए राजा, वो कह रहा है कि तमिलनाडु को स्वतंत्र देश बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत के लोग हिंदी थोपते हैं। अरे भाई 2 लोग यहाँ हाथ उठा रहे हैं कि उनको हिंदी नहीं समझ में आता है। आप ये पूरे भारत की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, तो भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। आप उसके प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे और बोलेंगे कि नहीं हम हिंदी ही में ही बोलेंगे, आपको भले ही समझ में ना आए, तो फिर वैसे ही प्रतिक्रिया होगी जैसे तमिलनाडु के लोगों की होती है। तमिलनाडु में एक समय भीषण आंदोलन चला है हिंदी के खिलाफ। तो अपने देश में क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है। तो या तो आप अनुवाद की सुविधा रखिए कि मैं हिंदी बोलूँ और इनको जो है अनुवाद करके बता दिया जाए, लेकिन वैसी तो सुविधा यहाँ है नहीं। तो फिर थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिला के बोलेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए, उनको भी समझ में आए, है ना। लेकिन ये हिंदी की तानाशाही जो है, ये दूसरे प्रदेशों के लोग जो हैं वो इसको सही नहीं मानते हैं। और देखिए हमारे देश में आपको बता दें, शिक्षा विभाग का 3 भाषा फॉर्मूला है कि बच्चों को स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। ये भारत सरकार की नीति है। सिर्फ तमिलनाडु में एक राज्य है जो इसको नहीं मानता। और मैं तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन में था जब अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, तो वहाँ पे तमिलनाडु का शिक्षा मंत्री हमेशा हाथ खड़ा करके बोलता था कि हम 3 भाषा फॉर्मूला को नहीं मानते, हम सिर्फ 2 भाषा फॉर्मूला अपने राज्य में चलाते हैं। तो कायदे से हर एक बच्चे को 3 भाषा सीखनी चाहिए। दूसरे राज्यों में बच्चे सीखते हैं, अपनी मातृभाषा के अलावा एक भाषा सीखते हैं। और आपके यहाँ भी अगर आप नवोदय विद्यालय में चले जाएं, मैं एक बार इलाहाबाद के नवोदय विद्यालय में गया तो वहाँ देखा कि सब मलयालम में बोर्ड लगे हुए, तो पता लगा कि वहाँ बच्चों को मलयालम सिखाई जाती है। तो अगर हम ईमानदारी से, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, अगर हमने ईमानदारी से 3 भाषा का फॉर्मूला लागू किया होता अपनी शिक्षा व्यवस्था में, तो हर एक हिंदी बोलने वाले छात्रा को कम से कम देश की एक और भाषा आनी चाहिए थी। वो गुजराती हो, मराठी हो, बंगला हो, तमिल हो, तेलुगु हो। लेकिन हम बेईमानी करते हैं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि एक भाषा हिंदी हो गई, दूसरी संस्कृत हो गई, तीसरी अंग्रेजी हो गई, और फिर देश की दूसरी भाषा आप कोई नहीं सीखते हैं उत्तर भारत में। जबकि आप चले जाइए तमिलनाडु में, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, आप चले जाइए बंगाल में, वो अपनी भाषा के अलावा एक और भाषा सीखते हैं। ये हम ही हैं हिंदी वाले जो कहते हैं कि हम कोई भाषा नहीं सीखेंगे और सबको हिंदी, हम बोलेंगे हिंदी और सबको हिंदी हमारी सुननी पड़ेगी। तो ये इसको कहते हैं हिंदी की तानाशाही। तो हमारा देश तमाम विविधताओं का देश है, उसमें एक भाषा की विविधता भी है और उसके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। और अगर 3 भाषा का फॉर्मूला ठीक से देश में लागू हो जाए तो फिर ये जो एक तानाशाही वाली बात है ये नहीं रहेगी। और फिर तमिलनाडु
जैसे राज्यों को नहीं लगेगा कि एक दिन वहाँ कानी मोजी जो करुणानिधि की लड़की है और सांसद है, उसको एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने जा रही थी तो एक सिक्योरिटी गार्ड महिला, उसने हिंदी में कुछ बोला होगा, उत्तर भारत की थी, तो कानी मोजी को बोला, कानी मोजी ने बोला कि अंग्रेजी में बोला कि भाई मुझे हिंदी नहीं आती। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड थी उसने कहा कि आप भारतीय नहीं हैं क्या? तो ये हमारे जो अज्ञानी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनको लगता है कि हर एक भारतीय को हिंदी आनी चाहिए। भाई जिसकी मातृभाषा तमिल है उसको क्यों हिंदी आनी चाहिए, जब हिंदी जिसकी मातृभाषा है वो तमिल सीखने को तैयार नहीं, वो गुजराती सीखने को तैयार नहीं, वो मराठी सीखने को तैयार नहीं। तो हम तमिल बोलने वाले से या तेलुगु बोलने वाले से या असमिया बोलने वाले से हम उससे क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी भाषा सीखे? ठीक है, आज का जो विषय है वो हाँ, मैं बात करना चाहता था जो हमारे मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मौलिक अधिकारों की बात हम बहुत सुनते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात भी कुछ शुरू हुई है, लेकिन वो बात अभी बहुत गंभीरता से हम उसको नहीं लेते हैं। आर्टिकल 21 आप पूछेंगे तो शायद सबको मालूम होगा। आर्टिकल जी ये मैं लाया। तो मैं चाह रहा था कि जो आर्टिकल 51A है अपने संविधान का, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके ऊपर बात करें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बात मेरे दिमाग में कहाँ से आई कि इस पे क्यों हमको ध्यान देना चाहिए। असल में 2018 में प्रोफेसर G.D. अग्रवाल जो IIT कानपुर में प्रोफेसर रहे और साधु बन गए थे, उनका नाम स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद हो गया था, और वो गंगा को बचाने के लिए अनशन पे बैठे थे हरिद्वार। उसके पहले भी वो 5 अनशन कर चुके थे, ये उनका 6ठा अनशन। 5 अनशन उन्होंने तब किए थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय भी सरकार पूरी बात नहीं मानती थी, कुछ बातें उनकी मान लेती थी, जैसे भागीरथी नदी जो है, गंगा बनने के पहले भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियाँ मिलती हैं तो गंगा बनती है। तो भागीरथी का जो 135 किलोमीटर की लंबाई है उसको पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। भागीरथी be declared as eco-sensitive zone. This demand of Professor G.D. Agarwal was accepted by मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। इसका मतलब ये था कि भागीरथी पे कोई बांध नहीं बनेगा, और 3 परियोजनाएं बांध की बिजली बनाने के लिए उनको मनमोहन सिंह की सरकार ने खारिज कर दिया था प्रोफेसर G.D. अग्रवाल के अनशन की वजह से। 3 hydroelectric projects, 2 of them which had not started, but 1 which was already underway. अगर आप कभी उत्तरकाशी से गंगोत्री जाएं तो रास्ते में आप देखेंगे कि एक पनबिजली परियोजना बंद पड़ी है, लोहारी नागपाला। उस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। वो बन रही थी, लेकिन जब प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि ये नहीं बननी चाहिए तो मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको वहीं बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा और हम इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल बांधों के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि उनका कहना था कि गंगा के अंदर एक अपने आप को साफ करने की क्षमता है जो सभी बहते पानी में होती है। लेकिन नागपुर का एक इंस्टीट्यूट है, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट है, वो उसने अध्ययन करके ये दिखाया है कि गंगा के पानी को अपने को साफ करने की जो क्षमता है वो यमुना और नर्मदा से ज़्यादा है।
So comparative study of Narmada, Yamuna and Ganga has proved that the self-cleaning property of Ganga is more than the other rivers, and this is mainly because of a virus called bacteriophage which is present in Ganga. Bacteriophage नाम का वायरस जो तमाम प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। जैसे कि मनुष्य के शौच से निकलने वाला जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसको ये वायरस ख़त्म करता है। तो जितना हमारा सीवर का पानी गंगा में जाता है, आज भी जाता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी सीवेज ट्रीटमेंट की उतनी क्षमता नहीं है जितना सीवेज हम निकालते हैं। तो उनका कहना था कि अगर बांध बना देंगे तो पानी रुक जाएगा और पानी के साथ वो बालू भी रुक जाएगा, जिसके साथ ये वायरस बहता है और फिर गंगा के अपने को साफ करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये बांध नहीं बननी चाहिए। तो वो अनशन पे बैठे थे 2018 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी और उनको लगा कि 20,000 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना होने के बावजूद गंगा को बचाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बांध धड़ाधड़ बनते चले जा रहे हैं, सिर्फ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। और प्रोफेसर अग्रवाल का साफ मानना था कि सीवर का पानी तो नदी में जाना ही नहीं चाहिए, मतलब साफ करके भी नहीं जाना चाहिए, गंदा तो जाना ही नहीं चाहिए। और अगर आप में से कई लोगों को तो आप में से बहुत सारे लोगों को यूरोप और अमेरिका में जाने का मौका मिला होगा, या नहीं तो आपने तस्वीरों में ज़रूर देखा होगा। ये सबको मालूम है कि यूरोप और अमेरिका हमसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। They generate more pollution than us, Europe and America. But you will never find any of their water bodies dirty. आपको कोई भी नदी तालाब वहाँ का गंदा नहीं दिखेगा, और इसकी वजह यह है कि उनके यहाँ सीवर का पानी नदी में नहीं डाला जाता, उसको साफ करके वो कुछ और उसको इस्तेमाल में लेते हैं, लॉन की सिंचाई में, कार धोने में, आपके शौचालय में जो फ्लश होता है, फ्लश टॉयलेट में, तो उस पानी का इस्तेमाल दूसरी जगहों पे हो जाता है, लेकिन वो नदियों में नहीं डाला है। तो प्रोफेसर अग्रवाल का भी मानना था कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं ये समाधान नहीं है, क्योंकि हम उतना बना ही नहीं पाएंगे। मतलब जितना हम बनाएंगे तब तक हमारी शहरों की आबादी और बढ़ जाएगी और सीवर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम अगर इसके पीछे पीछे भागते रहेंगे सीवर को ठीक करने के, साफ करने के, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए और बांध नहीं बनाना चाहिए। उनका अनशन 112 दिन चला। उन्होंने 4 चिट्ठियाँ लिखी नरेंद्र मोदी को, 2 अनशन शुरू करने के पहले, 2 अनशन के दौरान। और मैं उस समय गया था उनसे मिलने 2 बार हरिद्वार मातृ सदन में। एक आश्रम है, हरिद्वार स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर है। एक अनोखा समूह है साधुओं का जो गंगा को बचाने के लिए अब तक 60-65 अनशन कर चुके हैं, और उसमें से 3 साधुओं की जान चली गई। 2 की अनशन करते हुए, 1 की हत्या हो गई थी नैनीताल में, और 1 साधु बनारस में भी 2014 में गंगा को बचाने के लिए अनशन करता हुआ मरा। तो इस तरह से 4 साधु गंगा को बचाने के क्रम में अनशन करते हुए या उनकी हत्या हुई। माफिया, जो सैंड माफिया है, क्योंकि मातृ सदन के अनशन गंगा में जो अवैध खनन होता है उसके खिलाफ होते थे, और ये प्रोफेसर अग्रवाल जब अपने अनशन पे बैठे थे तो ये बड़े बांधों के खिलाफ बैठे थे। तो बहुत प्रयास चल रहा था कि किसी तरह से, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार में होता था, उनके साथ कोई बातचीत करे और उनका अनशन खत्म कराया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए आ नहीं रहा था। उस समय जल संसाधन मंत्री, उसका नाम तो बदल दिया गया था, उसका नाम हो गया था, उसके नाम में गंगा संरक्षण जोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद गंगा को बचाने के लिए एक हिंदू संत से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। नितिन गडकरी फ़ोन पे बात करने को तैयार थे सिर्फ। उमा भारती जरूर आई थी मिलने, लेकिन उमा भारती के पास वो मंत्रालय नहीं था कि वो निर्णय ले सके, वो सैनिटेशन विभाग देख रही थी। और आरएसएस के बड़े बड़े लोग ये कह रहे थे कि बात तो जीडी अग्रवाल साहब सही कह रहे हैं, लेकिन अब सरकार चलाने की कुछ मजबूरियां होती हैं, तो अब वो क्या मजबूरियां हैं वो सब आप समझते हैं। तो ये तर्क भी कुछ लोग जो उनके विरोध में थे, वो कह रहे थे कि जीडी अग्रवाल तो एक व्यक्ति है भाई, बहुत जाने माने वैज्ञानिक रहे होंगे, उन्होंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाया, उसके पहले यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर थे। रिहंद बांध में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल पहली बार उन्होंने किया था, जिसकी वजह से उनके चीफ इंजीनियर को पद्मश्री मिला था। बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से पीएचडी भी करके आए, आईआईटी कानपुर की नौकरी छोड़ी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी बने, और उसके बाद फिर वो चित्रकूट में जो विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, उसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, संत बन चुके थे, लेकिन सरकार उनसे बात नहीं कर रही थी गंभीरता से। और मुझे हालांकि लग रहा था कि उनसे बातचीत करके उनका अनशन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, और 112 दिन के बाद उनका देहांत हो गया एम्स ऋषिकेश में। तो उस समय ये बहस चली कि एक तरफ निर्वाचित सरकार जो बांध बनवा रही है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है, जो 20,000 करोड़ रुपए का नमामि गंगे उसकी परियोजना चला रही है, और एक तरफ एक अकेला आदमी उसका विरोध कर रहा है। वो भले ही बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, हिंदू संत हो, चाहे जो भी हो, तो उसकी बात क्यों मानी जाए, मतलब एक आदमी की बात क्यों मानी जाए, क्योंकि सरकार के पास तो भाई जनता का मैंडेट है जिसको कहते हैं। तो the question was, why should anybody listen to one man who may be a very great scientist and may be a Hindu saint fighting for, saving Ganga, but the government which is getting the dams built, which is getting the sewage treatment plants constructed, which is running a 20,000 crore rupees Namami Gange project, has people's mandate. So essentially government can do whatever it wants to, and one person should not oppose it, or he has no locus standi. तो हम लोग उसका आधार खोज रहे थे कि कैसे उनके अनशन को हम लोग जायज़ ठहराएं, और तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये नज़र आया कि हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी ये है। So आर्टिकल 51 से मैं पढ़ रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इट डजंट से एनी पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप और गवर्नमेंट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। ठीक, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में कि हर एक नागरिक ये प्रयास करेगा कि जो प्राकृतिक जो वातावरण है, प्रकृति है, जिसमें जंगल है, जिसमें तालाब हैं, नदियां हैं, वन जीव हैं, और जो दूसरे जो जैन साहब भी सुबह कह रहे थे, जो दूसरे जीव हैं, उनको हम बचाने की कोशिश करें। तो प्रोफेसर अग्रवाल इस हिसाब से जो काम कर रहे थे वो एकदम जायज़ है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ये सब जो हो रहा है इससे प्रकृति को नुकसान होगा, गंगा को नुकसान होगा, और उसको बचाने के लिए वो अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में अनशन पे बैठे थे, और वो पूरी तरह से संवैधानिक था, वो उसको हम खारिज नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद
जब इसको और गौर से पढ़ा तो देखा इसमें तो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। और इसी में एक बात वो भी लिखी हुई है जो आपके कॉन्फ्रेंस के थीम से संबंधित है, और उसमें लिखा है कि एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ और फिर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे जो आपके कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। पहला है ड्यूटी हमारा टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अपने संविधान का सम्मान करेंगे, उसको मानेंगे, और जो हमारे आदर्श हैं, जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उसके संस्थान हैं संविधान के तहत, उनको मानेंगे, राष्ट्रीय झंडे को मानेंगे और राष्ट्रीय गान। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय देश में दो किस्म के राष्ट्रवाद प्रचलन में है, और मुझे यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से राष्ट्रवाद हैं। एक राष्ट्रवाद है जो देश की आज़ादी के आंदोलन से निकला है, और दूसरा राष्ट्रवाद है जो आप सब जानते हैं, जिसकी आजकल ज़्यादा चर्चा है, हर घर तिरंगा वाला जो राष्ट्रवाद है। तो हमारे संविधान में साफ लिखा है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि नेशनल स्ट्रगल जो था फ्रीडम का, उसके क्या आइडियल्स थे, आप बताइए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप संविधान का प्रियम्बल बस पढ़ लीजिए, और प्रियम्बल में वो सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के वैल्यूज़ थे। तो एक बार मैं इस समय उसको रोक के फंडामेंटल ड्यूटी को मैं प्रियम्बल पे आता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। यानी कि हम एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, और हमारे हर एक नागरिक को न्याय, किस तरह का न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये क्रम है जो मुश्किल से आसान की तरफ जाता है, क्योंकि आपको अगर याद हो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि इस संविधान से राजनीतिक बराबरी तो आ गई हमारे सभी देशवासियों में, लंबा समय हमें तय करना है। तो देखिए क्रम है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वोट देने का अधिकार तो अब सबका हो गया है, अमीर का, गरीब का, ब्राह्मण का, दलित का, औरत का, आदमी का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी हमने कायम की है। दूसरा मूल्य है लिबर्टी, और ये आखिरी के जो 3 मूल्य हैं ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बस उसमें हमने जस्टिस जोड़ा है पहला, और जस्टिस इस देश के हिसाब से, इस देश में जो जाति प्रथा है, इस देश में जो दूसरे किस्म की गैर बराबरियाँ हैं, उसको देखते हुए वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो पहले नंबर पर रखा गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमारे सोचने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, हम किस धर्म को मानना चाहते हैं, हम किस तरह से पूजा करना चाहते हैं, वो स्वतंत्रता हमारी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बराबरी हमारी हैसियत में भी और हमें जो अवसर मिले उसमें भी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और आखिरी में बंधुत्व, और बंधुत्व हालांकि ये थोड़ा सा ऐसा शब्द है जो पुरुष प्रधान समाज ने गढ़ा है, इसलिए इसमें हम महिलाओं को, बहनों को छोड़ देते हैं, इसलिए अब इसमें संशोधन करके फ्रेटर्निटी एंड सॉरोरिटी कर देना चाहिए, मतलब भाईचारा भी और बहनचारा भी। तो पर इसका मतलब यही कि सारे जो नागरिक हैं उनके बीच में भाई बहन की जो भावना है
वो रहे और हर एक नागरिक का सम्मान। और फिर तो आप जानते ही हैं कि इसको हमने आत्मार्पित किया अपने आप को। तो ये जो मूल्य हैं, और इसमें भी आप जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को ले लीजिए, तो ये हमारे मूल्य हैं। यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, बराबरी और बंधुत्व। और बंधुत्व जब मैं कहता हूँ तो उसमें भाई बहन दोनों की भावना शामिल है। तो ये जो मूल्य हैं ये हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्य, जो आज़ादी के आंदोलन से निकले, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में भी कई धाराएं थी। एक मुख्य धारा तो कांग्रेस की थी, जिसके नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को खारिज किया। तो एक तरफ ये लोग थे, ये सब इन मूल्यों में मानते थे, बराबरी में, न्याय में, समानता, स्वतंत्रता, इन सब मूल्यों को मानने वाले लोग थे। लेकिन जो दूसरी धाराएं भी थी आज़ादी के आंदोलन की, जैसे भगत सिंह के संगठन के नाम में ही सोशलिस्ट है, तो रिपब्लिक भी है, तो भगत सिंह भी इन्हीं विचारों को मानते थे। और डॉक्टर अंबेडकर तो इसके लिए प्रयास ही कर रहे थे। तो चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर की धारा हो, चाहे वो कांग्रेस की धारा हो, और चाहे वो भगत सिंह की धारा हो, जितनी भी धाराएं थी, जो लोग ईमानदारी से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो ईमानदारी से आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उनकी बात मैं नहीं करना चाहूँगा। जो एक ऐसी धारा थी जो आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता को देश की आज़ादी के मिलने से पहले ही मारने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, आज़ादी के बाद मारा, आज़ादी के बाद तो मारने में सफल हो गए, लेकिन देश की आज़ादी मिलने से पहले ही गांधी की हत्या के प्रयास शुरू हो गए थे। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि देश की आज़ादी मिलने के पहले अगर देश की आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता को मारने की कोशिश की जा रही है, तो वो धारा क्या है, वो किस लिए काम कर रही है। तो ये जो मूल्य हैं हमारे संविधान के, यही मूल्य हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्य हैं। और इसलिए हमें ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके मूल्यों को हम माने, सम्मान करें, उनका पालन करें, क्योंकि ये आदर्श है हमारे लिए। नंबर 3 जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को हम बचाएंगे। नंबर 4 है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। यही हमारा मुख्य बिंदु है आज की बहस का, क्योंकि आपके ये कॉन्फ्रेंस के थीम से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे बिंदु हैं वो भी पढ़ लें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। जैसे टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारी एक मिश्रित संस्कृति है जिसमें तमाम संस्कृतियों का समागम है, तो उसको बचाना, और टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये तो आ गया जो मैंने पढ़ दिया था GD अग्रवाल जी के संदर्भ में। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। और आखिरी में, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child। यानी कि हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि अगर हम पेरेंट हैं तो हमारे बच्चे को शिक्षा मिले। और हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में अभी
सारे बच्चे स्कूलों के अंदर भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, या किसी अन्य कारण से अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप इन पे गौर करें तो ये सारे हमारे कर्तव्य, चाहे वो हमारी मिश्रित संस्कृति को बचाने की बात हो, साझा संस्कृति को बचाने की बात हो, चाहे वो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की, मानवता को और जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि सवाल पूछना और सुधार की जो दिशा है उसको विकसित करना, हम हिंसा का सहारा न लें, ये भी इसमें हमारा मौलिक कर्तव्य है, और strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity। ये सुबह जब यहाँ पे जैन साहब शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे और अपनी शिक्षा की जो कमियां हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था की, उसके बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि हम तो खुद अपने साथ धोखा करते हैं। अपनी शिक्षा को हम मतलब वो तो और आगे जाके बात कर रहे थे कि हमें अच्छा इंसान बनाना चाहिए और हमें सिर्फ विषयों को पढ़ाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे जिस तरह से नकल करके बच्चे 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पास करते हैं, मतलब ये तो अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि हमारा कर्तव्य ये कह रहा है कि हमें एक्सेलेंस, यानी हमें अच्छे से अच्छा काम करना है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है, लेकिन शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में या सिर्फ एक नागरिक के रूप में भी हम अपनी जिम्मेदारी इस दिशा में पूरी नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कि किसी तरह से हम अपना काम निकाल लें, किसी तरह से हमारा बच्चा भले ही नकल करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए, और हम शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी बातें हैं जिस पे बहुत बहस हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ उस बिंदु पे केंद्रित करूँगा और फिर अपनी बात को बंद करूँगा ताकि आपकी कोई प्रतिक्रिया हो और आपके कोई सवाल हो तो वो भी लिए जा सकें। तो देखिए, ये साफ कह रहा है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मौलिक कर्तव्य में, जो हमें कह रहा है कि हमें समाज में सद्भावना बढ़ानी चाहिए अपने कर्तव्य के रूप में, और साझा बंधुत्व जिसमें कि भाई बहन दोनों की भावना शामिल है, सारे नागरिकों के बीच में हमारे धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और जो हमारी अपनी जो भी सेक्शनल डाइवर्सिटी है, वो कास्ट की हो सकती है, वो किसी और चीज़ की हो सकती है। तो हमने जिन खांचों में अपने आप को बांट रखा है, जो बात जैन साहब भी सुबह कह रहे थे कि इस मौलिक बात को हम इस देश में मानने को तैयार नहीं कि इन सब हमारी जो डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो विविधताएं हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, उम्र के आधार पे और तमाम तरीके की हो सकती हैं, इसमें इनके बीच में हम बराबरी के भाव को मानने को तैयार नहीं। जो वो कह रहे थे कि लोग ये मान के चलते हैं कि वाइस चांसलर शिक्षक से ज़्यादा काबिल है, शिक्षक छात्र से ज़्यादा काबिल है, और छात्र जो पढ़ लिख नहीं रहा है बच्चा वो उससे ज़्यादा काबिल है। ऐसी तमाम तरह की मान्यताएं हमने बना रखी हैं और हम मनुष्य की बराबरी को मानने को तैयार नहीं। जबकि आप अगर गौर करेंगे कि बच्चा जब पैदा होता है
उसके अंदर उसका जो मतलब शरीर के अलावा जो उसका चैतन्य होता है, उसका जो कॉन्शियसनेस होता है, तो कॉन्शियसनेस की कोई उम्र नहीं होती, चैतन्य की कोई उम्र नहीं होती। वो मनुष्य की सारी भावनाओं को उसी तरह से महसूस कर सकता है, उसी तरह से व्यक्त कर सकता है जैसा कि एक बड़ा इंसान, ज्यादा उम्र वाला। ठीक, और इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार कई बड़े लोगों के छोटे बच्चों से ऐसी दोस्ती हो जाती है जैसे कि वो एक ही उम्र के। ठीक, इसका क्या आधार है? जो बड़े लोग अपने दिमाग में इस गैर बराबरी को नहीं मानेंगे, आपकी दोस्ती बच्चे के साथ वैसे ही हो जाएगी जैसे अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ। क्योंकि हमारा जो चैतन्य है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो बड़े और छोटे में एक जैसा ही होता है। बस होता ये है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम संवेदनहीन होते जाते हैं। बच्चा संवेदनशील होता है, इसलिए वो जो जैन साहब कह रहे थे कि जो प्रोफेसर और छात्रों की जो कमेटी बनी थी, उसमें छात्र ज़्यादा कड़ाई से अपने सहपाठियों के खिलाफ निर्णय लेते थे, बड़े लोग तो थोड़ा नरम हो जाते। तो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी के साथ समझौते करने लगते हैं, और जो हमारी संवेदना है जो बच्चे में ज़्यादा होती है, वो धीरे धीरे करके कुंठित होती रहती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम एकदम संवेदनहीन हो जाते हैं। फिर हम दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, बस हम अपनी चिंता या अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों की चिंता करते हैं, और हम नहीं सोचते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन हमें अगर उस तरह का समाज बनाना है जिसकी कल्पना थियोसॉफिकल सोसाइटी कर रहा है, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश में ये जो तमाम किस्म की जो गैर बराबरियाँ हैं उसको हम ख़त्म करें। और ये हमारे देश में खास करके, ये आपको अन्य देशों में इस किस्म की गैर बराबरियाँ नहीं मिलेंगी। मुझे अमेरिका में रहने का मौका मिला 6 साल। मेरे ऑफिस में, मैं सिर्फ छात्र था, मेरे ऑफिस में जो आदमी सफाई करके आता था, वो आता था रात में, क्योंकि दिन में वो कहीं और नौकरी करता, और वो आता था अपनी गाड़ी चला के और अपना पूरा ग्लव्स और वो बूट पहन के सब अपना सामान लेके आता था। रात को मुझे भी फुर्सत होती थी, वो भी फुर्सत से होता था, तो वो अपना काम वाम करके फिर मेरे ऑफिस में बैठ जाता था। मैं अपने लिए भी टी बैग की चाय बनाता था, उसको भी पिलाता था। फिर वो मुझसे भारतीय राजनीति पे चर्चा करता, भारत की राजनीति पे चर्चा करता था सफाई करके। और यहाँ मेरे घर में जो वाल्मीकि औरत आती है सफाई करने, तो वाल्मीकि ही आएगी, और तो कोई आएगी नहीं। ठीक, क्योंकि काम के हिसाब से हमने जाति व्यवस्था बना रखी है। एक बार अहमदाबाद में एक संस्थान ने एक नोटिस बोर्ड पे एक विज्ञापन निकाला कि हमें किसी भी धर्म में ऊंची जाति के लोगों को सफाई करने के रूप में नियुक्त करना है, ये विज्ञापन था। तो आपको मालूम है क्या हुआ? ऊंची जाति का तो कोई आदमी आया नहीं आवेदन देने, उनके कार्यालय पे हमला कर दिया एक संगठन ने कि आप ये विज्ञापन कैसे लगा सकते हैं कि आपको ऊंची जाति का सफाई करनी चाहिए। सफाई तो भाई दलित ही करता है, और उसमें भी कुछ विशेष जाति है। तो वो जो औरत आती है उसको मैंने तमाम प्रयास किए कि भाई तुम सोफे पे बैठो, डाइनिंग टेबल पे बैठो। तो कभी हम लोग जब घर में नहीं रहते हैं तो वो बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुझे देखेगी या मेरे पिताजी को देखेगी तो वो तुरंत कुर्सी छोड़ के जमीन पर बैठ जाएगी। और उसने अपनी बच्ची को 4वीं-5वीं तक हम लोगों ने पढ़ाया, उसके बाद निकाल दिया। तो क्यों निकाला? क्योंकि जो 5 घर उसके पास हैं जहां वो सफाई करती है, वो चाहती है कि जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसके बाद वो 5 घर उसकी बेटी को मिले, वो किसी और दूसरे को न मिले। उसको मैंने समझाया, धमकाया, यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर दूंगा कि तुम अपनी बेटी से काम करा रही हो। ये बाल दास्ता है, लेकिन वो नहीं मानी। तो ये जो हमारे देश के अंदर गैर बराबरी है कि हम मेहनत
कश जो वर्ग है, जो मेहनत से काम करने वाले लोग हैं, उनका हम सम्मान नहीं करते। हमारे घरों में सफाई का काम करने वाले, खाना बनाने वाले, इस तरह के जितने लोग हैं, उन सोफे पे नहीं बैठ सकते, उस डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ सकते जिसमें हम खाते हैं, जिसमें हम बैठते हैं। तो यहाँ से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर ये तो बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि ये एक मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। और उसमें आखिरी में जो लिखा है, रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, अभी 2 फैसले हुए हैं अपने देश में, बस उसकी आपको याद दिला के मैं ख़त्म करूँगा कि हम चाहे जितने नारी सम्मान की बात करें, चाहे जितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, और चाहे हमारी महिलाएं किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र ऐसा बचा है जहां वो पहुंच न गई हों। और हम ईरान से तो बहुत बेहतर स्थिति में हैं, जहां सिर्फ हिजाब उतारने के लिए महिलाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। एक फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है कि बिल्किस बानो नाम की महिला, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ 2002 में गुजरात में, और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मारा गया, 3 साल की बच्ची थी, उसको चट्टान पे पटक के मारा, और कुल मिला के 14 परिवार के सदस्यों की हत्या हुई, 11 लोगों को सजा हुई, और 15 अगस्त को गृह मंत्रालय के एक आदेश से 11 लोगों को गोधरा जेल से छोड़ दिया गया है। और जो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस समिति पे थे, जिस समिति ने छोड़ा है, उनका कहना है कि इन लोगों को छोड़ा इसलिए गया है क्योंकि इसमें से कुछ संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो बलात्कारियों और हत्यारों को संस्कारी ब्राह्मण बता के छोड़ा गया है, और उस महिला को इन्हीं 11 लोगों के साथ उसी इलाके में रहना पड़ रहा है। अब आप सोचिए, अपने आप को उस महिला की स्थिति में रख के सोचिए, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसके बच्ची की हत्या की गई है, जिसके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई है, और उसके 11 हत्यारे और बलात्कारी, उसके परिवार के सदस्यों के हत्यारे और बलात्कारी उसी इलाके में घूम रहे हैं। दूसरा निर्णय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आया है। एक निचली अदालत ने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होने पे एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी। हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने ये कहते हुए कि अरे भाई, उसने बच्ची की जान तो बख्श दी ना, तो उम्र कैद को 20 साल कर देते हैं, उसकी सजा कम कर देते हैं। सोचिए आप, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और सजा कम की जा रही है क्योंकि उसने उसको मारा नहीं, उसने रहम कर दिया उस बच्ची को। तो मैं कभी सोचता हूं कि अगर ये 2 जज जिन्होंने आदेश दिया, अगर इसमें एक भी महिला होती, और ये जो समिति जिसने इन 11 लोगों को माफ किया है, हत्यारों और बलात्कारियों को, अगर इसमें 80% पुरुष थे, अगर इसमें कम से कम 50% भी महिलाएं होती, तो भी क्या यही फैसला आता जो उन्होंने लिया। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा, और अब आपके लिए ये मंच खुला है। So he has exhausted 40 minutes, and it took us to several issues of Namami Gange issues and environmental, and explained the fundamental duties. Fundamental duties were brought into the Constitution of India in the 42nd Amendment 1976. 10 fundamentals duties were inserted into the Constitution in 1976, and the 11th one was brought into later after. It was brought into Constitution after sometime. So the 11th one. So there are 11 duties are there, fundamental duties. Yes, he took us to the preamble and touched on the freedom struggle, and he read through the 11 duties and explained things. He stressed the importance of duty number 5 to promote. He has explained in detail. Sandeep Pandey. There is no age for. He has also brought us to that there is no age for human consciousness, but
the age only for physical body. He explained the difference of cleaning in the washrooms or something in USA and India, the concept of cleanliness and all these things, how the things are happening in our country. And he also touched about the latest issue, hijab issue. So he highlighted the women's cause, environmental issues. Now the floor is for interaction as suggested by him. Any questions are, we can close the time by some 10 minutes is there. Any question? So that we can close by 6:25. जिनको कुछ कहना है, सवाल पूछना है, मेरे ख्याल से यहाँ आके कहेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे। नहीं, मतलब अगर कोई सवाल नहीं मांगूंगा तो मैं ये मान लूँगा कि भाई जो बातें मैं कह रहा हूँ उससे सब लोग सहमत हैं और उससे ज़्यादा मुझे कोई खुशी नहीं होगी। आज का जो भारत है उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी विश्व बंधुत्व की बातें कर रही है, तो आपको लगता है कि विश्व बंधुत्व होने की कोई शक्यता है? नहीं, विश्व बंधुत्व, और उसमें फिर मैं बार बार कहना चाहूँगा कि बंधुत्व में भाई बहन दोनों को शामिल करें, दोनों की भावना को। देखिए, वो तो नेचुरल है। मतलब इंसान का जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर किसी भी किस्म की गैर बराबरी की भावना नहीं रहती। ये तो जब वो बड़ा होता है तो हमारे ये जो तथाकथित संस्कार हैं इसमें हमें बताया जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और ये चाहे वो जाति के नाम पे गैर बराबरी हो, चाहे वो धर्म के नाम पे भेदभाव हो, चाहे वो लैंगिक गैर बराबरी हो, ये सारी बातें तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि मूल रूप से इंसान के अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं है गैर बराबरी वाली, और इसके मैं आपको कितने उदाहरण दें। मतलब मुझे पाकिस्तान 10 बार जाने का मौका मिला, और जब यहाँ से जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, पता नहीं जिंदा बच के लौटोगे कि नहीं। लेकिन मेरे पिताजी भी पाकिस्तान गए हैं और आप में से भी कुछ लोगों को मौका मिला होगा जाने का। हमें तो उल्टा अनुभव होता है कि जब हम जाते हैं पाकिस्तान तो जो भी व्यक्ति मिलता है वो यही कोशिश करता है कि वो हमें किस तरह से हमारी कुछ आवभगत करे। या तो हम उसके घर चले जाएं खाना खाने के लिए, नहीं तो वो हमें चाय ही पिलाना चाहेगा किसी दुकान पे। दुकानदार को पता लगेगा कि आप भारत से आए हैं तो वो अपने सामान का दाम कम कर देगा, बोलेगा अरे आप तो हमारे मेहमान हैं। हो सकता है बस वाला टैक्सी वाला आपसे किराया ही न ले क्योंकि आप हिंदुस्तान से आए हैं। और मैं एक बार इस्लामाबाद गया था, हमारे मित्र प्रोफेसर हैं वहाँ पे, क़ायदे आज़म यूनिवर्सिटी में थे, अब तो रिटायर हो गए। तो उनकी बीवी ने मुझे बताया कि मैंने आज पता नहीं कितने साल बाद वेजिटेरियन खाना बनाया। तो वहाँ लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए वेजिटेरियन खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो हमने तो इतनी आत्मीयता देखी है। जब पहली बार मैं अपने छोटे बच्चों को लेके गया था तो मेरा बेटा लाहौर पहुंच गया था और वहाँ पे हम लोग मीटिंग कर रहे थे और वो मुझसे पूछ रहा है कि पापा पाकिस्तान कब आएगा। मतलब उसको समझ में नहीं आया कि हम वाघा बॉर्डर से दूसरे देश में आ गए, क्योंकि वही भाषा, वही संस्कृति, वैसे ही लोग। एक बार हमने दिल्ली से मुल्तान की एक पदयात्रा निकाली थी और वाघा बॉर्डर के पहले एक ढाबे पे हम चाय पी रहे थे। वहाँ BSF के कुछ जवान अपनी बड़ाई तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे हम तो देखते ही बता देंगे कौन पाकिस्तानी है। तो हमने कहा हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम में से बताओ कौन पाकिस्तानी है। बोले नहीं ये तो सब इंडिया के लोग।
जबकि उसमें हैदराबाद सिंध का एक हमारा दोस्त बैठा हुआ था। हमने कहा ये पाकिस्तानी है, बोला नहीं ये तो बिहार का आदमी है। हमने कहा अरे भैया ये पाकिस्तान, इसका पासपोर्ट देखो, ये सिंध पाकिस्तान का है। तो ये जो दुश्मनी है ये सिर्फ राजनीतिक है और ये सिर्फ ये कृत्रिम रूप से बनाई गई। और आप देखिए इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जाते हैं पाकिस्तान, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो बिना बताए गए अफगानिस्तान गए, वहाँ से लौटते हुए उतर गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके उन्होंने क्या किया, वो नवाज शरीफ के एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाते हैं, उनकी माँ को शॉल भेंट करते हैं। उस दिन किसी का जन्मदिन था शायद उनके परिवार में, और एक ऐसी तस्वीर है नवाज शरीफ के साथ जो आपने दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ नरेंद्र मोदी की नहीं देखी होगी। आप जरा से खड़े हुए राव साहब, एक मिनट। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ का हाथ ऐसे है, ऐसे। आपने ऐसी तस्वीर उनकी कभी देखी है किसी के साथ? बिडेन के साथ, ट्रंप के साथ, पुतिन के साथ, ये जो चाइना वाला है इसके साथ कभी देखी है? नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का हाथ ऐसे है कि जैसे मान लो कितने सालों से जानते हैं एक दूसरे, ठीक? तो हम लोग तो इसका पूरा अभियान चलाते हैं कि भाई जब नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ के साथ मैत्री चाहते हैं, जब हमारे सैनिक त्योहारों पे वाघा पे एक दूसरे को मिठाई के डब्बे देते हैं, तो ये दुश्मनी आपने क्यों बना के रखी हुई है? इस दुश्मनी को खत्म कीजिए, बॉर्डर से सेना हटा लीजिए, आगे जाने का रास्ता खोल दीजिए। ये हम लोग की मांग है, इसका कैंपेन हम लोग चलाते हैं। और अगर दुनिया में ये जो दीवारें जो हमने बना के रखी हुई हैं, ये इनको हम हटाएंगे नहीं, वो सिर्फ भारत पाकिस्तान की ये दीवार नहीं है, वो मतलब हमारे समाज में जाति और धर्म और लिंग और तमाम तरह की दूसरी दीवारें भी हैं। ये सब दीवारें हम हटाएंगे नहीं तो बराबरी कैसे आएगी? तब तक वैश्विक बंधुत्व की भावना कैसे आएगी? इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन दीवारों को ख़त्म करें। एकदम संभव है क्योंकि वो मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य की का स्वभाव, मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव दुश्मनी या नफरत नहीं। इसलिए आप देखिए कि किसी मेरे साथ BHU में पढ़े, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े, अब मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं, लेकिन मेरा उनके प्रति जो दोस्ती भाव है उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन अगर आज मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है और मैं उससे 10 दिन बाद मिलता हूँ तो नफरत में कुछ कमी आ गई, और साल बीत जाएंगे तो और कमी आ गई। हाँ, और फिर होली आएगा तो हम कहेंगे अरे यार छोड़ो, क्यों हम दुश्मनी की बात करें, चलो दोस्ती कर लेते हैं। तो नफरत का भाव जो है ये अस्थायी है, और इसका सबसे जो हालांकि मैं ये आपको वार्निंग के साथ ये तर्क दे रहा हूँ कि भौतिक व्यवस्था के नियम मनुष्य के स्वभाव पे नहीं लागू किए जा सकते। बहुत सारे लोग करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अब ये कह दिया गया, लेकिन भौतिक पदार्थों के नियम मनुष्य स्वभाव पे लागू नहीं होते। लेकिन फिर भी ये वार्निंग के साथ भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, और मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, प्रकाश के क्या क्या स्रोत होते हैं? प्रकाश के क्या क्या स्रोत होते हैं बताइए, बोलिए। प्रकाश के क्या क्या स्रोत होते हैं? सूरज, हाँ चलिए, माइक नहीं है तो मैं ही बोल देता हूँ भाई। सूरज हो गया, बिजली हो गई, आग हो गई, यही तो है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत जिनको हम चिन्हित कर सकते हैं। अंधकार का स्रोत क्या है? अंधकार का स्रोत क्या है? क्या हम ऐसा कोई स्विच लगा सकते हैं कि उस स्विच को दबाने से अंधकार हो जाए? बताइए। प्रकाश का ना होना ही अंधकार। प्रकाश का ना होना अंधकार। जब तक आप प्रकाश को रोकेंगे नहीं, जब तक वो सूरज
जब तक पृथ्वी का मुंह सूरज की उल्टी तरफ नहीं जाएगा, जब तक इस बिजली के स्विच को हम बंद नहीं करेंगे, तब तक अंधकार नहीं आएगा। तो प्रकाश को रोक के ही हम अंधकार ला सकते हैं। ठीक यही बात मुझे लगता है कि मैत्री और दुश्मनी पे भी लागू है कि अगर मैत्री आप खत्म करेंगे जानबूझ के, मतलब जानबूझ के बिजली का स्विच बंद करेंगे, तब अंधकार है, तब दुश्मनी हो। नहीं तो स्वाभाविक जो चीज है वो मैत्री भाव है। मतलब अस्तित्व उसी का है, अस्तित्व बंधुत्व का है, मैत्री का है। नफरत का, गुस्से का, इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये अगर कहा जाए तो ये मनुष्य की नासमझी है, अज्ञानता है। मनुष्य की अज्ञानता के कारण वो ये जो नकारात्मक भाव है उसके अंदर पैदा होते हैं। नहीं तो अगर वो सकारात्मक भाव से काम करे तो उसके अंदर सकारात्मक मूल्य ही स्थायी मूल्य उसके साथ वो पैदा होता है, उसको सीखना नहीं पड़ता। कुछ चीज़ें मनुष्य अपने साथ लेके पैदा होता है और ये जो भाव है ये उसके साथ पैदाइश है, उसके साथ। और जब उसको माहौल मिलता है तो वो और फलते फूलते हैं। तो ये पूरा ये तो आप सबको मालूम है कि हमारी अपब्रिंगिंग के हिसाब से ही हमारा व्यक्तित्व तय होता है कि जिस तरह का माहौल हमें मिल रहा है बड़ा होने के लिए। तो मैं इस तरह से इस चीज़ को समझता हूँ। जी ठीक है, ये आखिरी सवाल ले लेंगे क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है। सर मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया रखते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तालमेल रखता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसके बारे में मेरा दिमाग बहुत साफ है। रिजर्वेशन पे इन्होंने सवाल पूछा है। देखिए, संविधान में साफ साफ लिखा है कि समाज के जिन तबकों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में जिनका प्रतिनिधित्व शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में, इलेक्टेड पोजीशंस पे नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। अब समाज में मोटा मोटा हमको ये मालूम है कि 14-15% या थोड़े से कम शायद दलित हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। 7-8% करीब आदिवासी हैं। 52% करीब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। 14 से 19% के बीच में शायद अल्पसंख्यक हैं और आधी महिलाएं। ठीक, तो चूंकि हमारा समाज इस हम वास्तविकता को ये कह के नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, क्योंकि जो जाति व्यवस्था के निचले पायदान में हैं उनको तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने अपने यहाँ जो काम करने वाली महिला है उसके बारे में बताया, उसने अपनी बेटी के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए, तो उसका अभिशाप उनको झेलना ही पड़ता है, क्योंकि एक जाति व्यवस्था में उनको बता दिया गया है कि आपका यही काम है। अगर उस गरीबी से या उस शोषण की व्यवस्था से उनको निकलना है तो उसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत उस दिन खत्म होगी जब हमारे हर एक शैक्षणिक संस्थान में, जब हम किसी भी कार्यालय में जाएं जहाँ लोग नौकरियाँ करते हैं, हमारी पुलिस में, हमारी सेना में, हमारी जुडिशियरी में, और जो भी सार्वजनिक जगह हैं, हमारे मीडिया में, जब हम देखेंगे कि समाज के जिस अनुपात में जो वर्ग है, जो बिरादरी है, उस अनुपात में उसकी उपस्थिति वहाँ दिखाई पड़ रही है। यानी कि 10 से 14% दलित, 7 से 8% आदिवासी, करीब 52% पिछड़ा वर्ग के लोग, 14 से 19% अल्पसंख्यक और आधी महिलाएं।
उसमें भी आधी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं की हिस्सेदारी आधी की है इस धरती पे, इसलिए उसके हिसाब से उनको ये 33% रिजर्वेशन की जगह जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, सोशलिस्ट पार्टी, वो 50% रिजर्वेशन की बात करती है महिलाओं के, क्योंकि आधी आबादी, हम महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं, तो आधा हिस्सा तो देना पड़ेगा। तो 50% रिजर्वेशन तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही होना चाहिए। तो ये जब ये हमें सार्वजनिक हमें जगहों पे ये जब दिखाई पड़ने लगे कि समाज के हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो रहा है, तब जाके रिजर्वेशन की ज़रूरत खत्म मानी जाएगी। क्योंकि हमने एक गैर बराबरी की व्यवस्था पहले से चलाई हुई। हमारी व्यवस्था पहले गैर बराबरी वाली थी, उसमें चाहे आप एकलव्य की कहानी का उदाहरण ले लें या कोई और भी इस तरह की जो भेदभाव जाति के नाम पे हुए हों, लेकिन वो व्यवस्था तो थी जिसमें कि समाज का एक सिर्फ जो उच्च वर्ग था उसी को ये सुविधा शिक्षा की मिली थी। और महिलाओं को तो 1800 मतलब शुरू तो अंग्रेजों ने कर दिया था, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने जब शुरू की है लड़कियों की शिक्षा पुणे में, तब सही मायनों में भारत में महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत एक तरीके से हुई। तो आप देखिए कि 200 सालों से कम के समय में हमने इतनी प्रगति की है सिर्फ महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में। तो अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम उस तरह की प्रगति करें तो निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता खत्म हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी समाज के हर एक वर्ग को वो जो उसकी उपस्थिति है समाज में, उसके अनुपात में उसको जगह नहीं मिली। ठीक, तो ये आखिरी सवाल के साथ हम ख़त्म करेंगे। मेरा आप एक ईमेल नोट कर लें और उस ईमेल पे आप मुझसे और संवाद कर सकते हैं। ईमेल है ashaashram@yahoo.com, ashram@yahoo.com। जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया है, अब आपके ऊपर है कि आप चलिए, आपको मौका दे रहे हैं। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया। सर, मैं मध्य प्रदेश राजस्थान फेडरेशन के विक्रमलाल उज्जैन का प्रेसिडेंट हूँ, और अभी रिसेंटली हमारा उदयपुर में मध्य प्रदेश राजस्थान फेडरेशन का प्रोग्राम था, तो वहाँ सब्जेक्ट हमने रखा था कि परम सत्ता के गूढ़ रहस्यों की अभिव्यक्ति अनिर्वचनीय है, इनडिस्क्राइबेबल है। और ये हम सब जानते हैं कि ठीक है, इनडिस्क्राइबेबल है, लेकिन आज हम असंतोष हैं, दुखी हैं, और दुनिया का जो माहौल हम देख रहे हैं, तो ऐसा कितना समय लगेगा कि हम उस परम सत्ता के गूढ़ रहस्य को पहचान पाएं? देखिए, ये सवाल आपने गलत आदमी से पूछ लिया। मैं एकदम नास्तिक आदमी हूँ, ईश्वर को नहीं मानता हूँ। मैं हड्डी मांस वाले देवी देवताओं को मानता हूँ और उन्हीं के बीच में उन्हीं के लिए काम करता हूँ। ठीक, तो ये जो सवाल है ये आप किसी और से पूछिए। मेरे लिए परम सत्ता आप ही। आप अगर मुझसे खुश रहेंगे तो मुझे मालूम है कि मैं भी सुखी रहूँगा। आप मुझसे नाराज रहेंगे तो आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। इसके अलावा मेरा सुख कहीं से आना नहीं। मनुष्यों के बीच में जो संबंध है ये ठीक रहेंगे तभी हम सुखी रह पाएंगे। इसके अलावा और कोई सुख है नहीं, बाकी सब जो है मृग तृष्णा। धन्यवाद। For your information, you can search Sandeep Pandey on Wikipedia. In Google search Wikipedia, you see his profile. And for your another information, the Indian Constitution has been amended for 105 times till October 2021. That is a small information. And regarding that reservation and preservation, the alphabetical order pre comes after, R comes after reservation. So unless we preserve the polity, Indian polity, the reservation continues.
on my personal note. So, this is the issue. I convey my thanks on all your behalf, on my behalf to Sandeep Pandey. Thank you very much.